Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and sound. So this is Kanchan ma'am here, back with the Swift Learn, which is India's most sincere learning destination, providing you classes for first to 10th. Okay, and I can say that the one and only destination which is providing you the concept-based learning. Okay, so here we are back with the session number 2 of tangents and intersecting chords. Okay, so till then who are online, you can drop me a message in the comment box. Hello ma'am, hi ma'am, कैसे हैं आप? Okay, until then let me tell you more about Swiftlin. So Swiftlin is providing 100% live and interactive classes. You already know that. अभी तो इतनी बार मैम ने बताया है ना कि I don't think कि इन सबको इतना explain करने की ज़रूरत है, right? Personalized attention batch with maximum 6 students, a dedicated academic mentor team which is on the whole tracking and working on your progress. Syllabus CBSE, ICSE, State Board, all the syllabus are covered here. Detailed progress report in the form of PTM. So PTM होता है ना Parents Teacher Meeting. So we have that. Parents Teacher Meeting में आपके growths, आपके in class assessment, आपके homeworks, आपके monthly test में how you are doing in all that. So we will be providing you all the information regarding that. Now when I talk about unlimited practice tests that are going to be the objective and the subjective also, so it means it is very important part of the Swift Learn. Suppose the chapter is over now and teacher ने आपको सारे concepts पढ़ा दिए हैं, but when it comes to the practice कि आप practice कहाँ से करें, तो आप क्या करेंगे ना, आप online questions, अभी जैसे MCQs CBSE ने इस बार बहुत कुछ change कर दिया है, they are giving MCQs questions, right? तो आपको टेंशन हो जाएगी कि यार MCQs तो है ही नहीं, कहाँ से करें, कैसे बुक्स लेंगे, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Swiftlin will be providing you unlimited practice test in the form of MCQs and in the form of subjectives also. SATs, Swiftlin Academic Test Series. If you are a Swift learner, then you can be a part of this test series. और यहाँ पे आप टेस्ट देकर एट द सेम टाइम आप अपने ही एज ग्रुप मतलब अपने ही क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ compete कर सकते हैं. आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो क्या करना है भैया, ट्रायल करके देख एक ट्रायल बुक करके देख लीजिए. दैट इज एब्सोल्युटली फ्री. फॉर दैट यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सिंपली गो टू द गूगल बाबा. वहां पे जाके आप www.swiftlin.com टाइप करेंगे तो भी आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं. Now, those who are new to the channel, kindly subscribe us, press the bell icon so that you will never have any update. हमेशा कहती हूँ Swiftlin में day by day we are providing you lots things. I mean, इंग्लिश ग्रामर की वर्कशॉप्स चल रही हैं और भी बहुत कुछ वर्कशॉप्स चलती रहती हैं. सो इट इज़ फॉर यू, आपके लिए ही ये सब कुछ प्रेजेंट किया जा रहा है. सो बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो कुछ भी मिस नहीं होगा. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स. आई थिंक फर्स्ट सेशन में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि टेंजेंट्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स क्या होते हैं. आपको मैंने सर्कल पढ़ाया है, उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है कि टेंजेंट कॉर्ड्स ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, राइट? So today we are going to do some theorems and obviously problems तो करेंगे ही सॉल्व. तो आपको पता है ना मैम का कंसेप्ट ही ये होता है, पहले हम बेसिक कंसेप्ट करते हैं, फिर हम थ्योरम्स पढ़ते हैं और फिर हम उसमें बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं. तो टुडे वी विल बी डूइंग द सेम थिंग. In the previous class we have studied about the circle chords and their intersection internally or externally. Now कुछ theorems पढ़ते हैं, ठीक है? The very first theorem will be if two chords of a circle intersect internally or externally. भाई दो chords है सर्कल की, वो internally भी intersect कर सकती हैं और externally भी intersect कर सकती हैं, right? तो they are saying that the product of length of their segment, this is very important. What are they saying? Okay, let me take the pencil. The product of length of their segment are equal. The product of length of their segment. तो they are saying that अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये PA into PB, मतलब this whole multiplication, the product of length of their segment, उनका जो segment बन रहा है उनका अगर मैं product कर दूँ तो they will be equal. They will be इक्वल. अभी बात समझ में आई. बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि एक सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड AC है, एक कॉर्ड DB है. इफ दे आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली तो P इज इंटरसेक्शन पॉइंट. तो यहां से आप ले सकते हैं कि PA इंटू PB विल बी इक्वल टू PC इंटू PD. ठीक है, और अगर मैं यहां से भी लूं तो यहां से भी आ सकता है PA इंटू PB, इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन विल बी इक्वल टू इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन. ओके, सो थ्योरम इज क्लियर. So the chord intersect करेगी दो तरीके से, either it can intersect internally और either can intersect externally. पता है ना? ठीक है, अब देखिए, अब देखते हैं कि जब internally intersect कर रहा है तो क्यों ये इक्वल है.
वी नो दैट ना कि थ्योरम है तो प्रूफ तो होगा ही, राइट तो यहाँ पे दो कॉर्ड्स हैं, अगर मैंने उनको इस तरीके से क्रॉस कर दिया तो दे आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी है। चलो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। लुक एट दीज टू ट्राइंगल्स, in which triangle you have to see, you have to look for in triangle APC और in triangle BPD triangle में। अब आप ध्यान दीजिए, it's very simple, as you can see that angles are on the same segment। ये देखिए सेगमेंट है CB, इस CB सेगमेंट में as you can see that दो एंगल्स बन रहे हैं। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि अगर ये सर्कल है और इस सर्कल के ये सेगमेंट में अगर दो एंगल्स बन रहे हैं और इसी सेगमेंट में अगर मैं कितने भी एंगल्स बना दूं, बच्चों आपको विजुअलाइजेशन भी दिखाया हुआ है लास्ट क्लास में, दे विल ऑल बी इक्वल। ये जितने एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब इस सेगमेंट के हैं, तो ये ऑल सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो बाय सिमिलरली वी कैन से दैट कि यहाँ पे जो एंगल ए है दैट विल बी एंगल डी बिकॉज दे आर ऑन द सेम सेगमेंट। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट एंगल सी जो है वो भी एंगल बी के इक्वल है। आप इस वाले सेगमेंट को ले लीजिए, अगर आप ए डी के करस्पॉन्ड में लें तो सी बी के इक्वल हो जाएगा। दो ट्राइंगल्स, दो एंगल्स इक्वल, तो हम कह सकते हैं बाय ए पोस्टुलेट और बाय ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए पी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी पी डी, ठीक है। अब अगर दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर हो गए, तो आपको पता है ना कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या होता है, जो रेशो होता है वो प्रोपोर्शनल में होते हैं, ठीक है। या रेशोज इक्वल होते हैं या वो प्रोपोर्शनल में होते हैं, पता है ना। रेशो एंड प्रोपोर्शन भी बताया कि जब दो रेशोज इक्वल हो जाते हैं तो वी कॉल देम दे आर इन प्रोपोर्शन। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ना कि पी ए, आपने इसके सामने वाला ये एंगल ले लिया और इस एंगल के सामने वाली ये साइड, मतलब दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ठीक है। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत है। और फिर इसको आप अपने मन चाहे उसमें जो चेंज कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए। अरेंज इज अ वर्ड जो मेरे मुंह पे नहीं आ रहा था, बट ठीक है, ठीक है, कर सकते हैं ना। तो बाय द, अगर आपने इन दोनों को अगर आपने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो उन दोनों को सिमिलर प्रूफ करके आप क्या बता सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम कैसे लिखें कि रेशो किसका इक्वल है। भाई इसके सामने वाला AP और ये एंगल किसके इक्वल था, इसके, तो इसके सामने वाला साइड लिख दीजिए PD, आ गया। और PA PD PDP कुछ भी लिख सकते हैं आप, बात समझ में आ रही है। तो ये नहीं समझना है कि ये रेशो कैसे लिख दिए, तो रेशो आपको मैंने रेशो एंड प्रोपोर्शन में बहुत अच्छे से बताया कि लिखने के लिए जो एंगल इक्वल है उनके सामने वाली साइड लिख दीजिए और उनका रेशो अपने आप इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको अरेंज कर दिया, अरेंज करने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और हमने इस फॉर्म में लिख दिया, हमारा थ्योरम हो गया प्रूफ। नाउ लेट्स वॉक थ्रू द अनदर थ्योरम विद द सेम थिंग कि जब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली कर रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या हो गई, फिर से दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। भाई क्या दिक्कत है, बहुत सिंपल तो है। एक ये छोटा वाला छोटू सा ट्राइंगल बन रहा है और एक ये बन रहा है बड़ा वाला ट्राइंगल। तो द मोमेंट आप इसको देख रहे हैं, आपको पता है ना, आपको क्या पता है कि ये दोनों ट्राइंगल, ये देखिए, तो आप ये देख सकते हैं कि अगर एनी हाउ मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल और छोटा वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो यहाँ से भी मेरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, मतलब मेरा जो काम है वो पूरा हो जाएगा। कर सकते हैं ना, बहुत इजी है, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे कैसे प्रूफ करें। अब यहाँ पे हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि जब एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है बच्चों, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है चलो बता देते हैं। ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो सकता है, बट मैं यहाँ पे नॉर्मल ले रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ इजीली। इसका जो एक्सटीरियर एंगल बनता है बच्चों, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसका जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये हो जाता है इसके इक्वल। किसके इक्वल, इसके इक्वल। ये आपको थ्योरम पढ़ाई हुई है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो उसके इंटीरियर अपोजिट के इक्वल होता है। ये थ्योरम यहाँ पर यूज करनी है आपका, मतलब ये वाली थ्योरम आपको यूज करके ये वाली थ्योरम को प्रूफ करना है। क्लियर। और प्रूफ मैं करा सकती हूँ, देखो प्रूफ बहुत इजी है, करवाया हुआ है। प्लीज अब ये मत कहिएगा मैम प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है, लास्ट क्लास प्रीवियस क्लास में आपको करवाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ये यूज करेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, अब मैं कह सकती हूँ कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है ना। और ये देखो ये एक एंगल आ गया, ये दोनों में कॉमन है, मिल गया ए क्राइटेरिया। अब ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर, द मोमेंट दे आर सिमिलर यू कैन राइट दैट कि दोनों के जो साइड्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शन, वो जो दो रेशियोज होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे,
है ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये, ठीक है। इसके सामने वाली साइड इसकी और इसके सामने वाली साइड इसकी, पर ये आपको चाहिए नहीं तो आप तीसरा का ले सकते हैं, ठीक है। और आप ये वाला तो देखिए अब किया है सिमिलर, तो बाकी तो अपने आप ही सिमिलर हो जाएंगे, मतलब इसके सामने वाली साइड ये और इसके सामने वाली साइड ये। अगेन आप इसको लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्म में, ठीक है। ये देखिए आप इसको लिख सकते हैं पी ए अपॉन पी डी इज इक्वल टू पी सी अपॉन पी डी, ठीक है। बस तो थिंग इज दैट यू हैव टू मेक देम सिमिलर। द मोमेंट यू आर मेकिंग देम सिमिलर, आप इसमें सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट लगा देंगे कि दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है उनका रेशो भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। बस इतना लगाएंगे, इसीलिए कहते हैं एक चैप्टर पढ़ेंगे तो बाकी सारे चैप्टर्स का फ्लो अपने आप बनता जाएगा। चलिए एक और थ्योरम देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड, द एंगल between a tangent and a chord through the point of contact is equal to an angle in the alternate segment। चलिए इसको मैं समझा देती हूँ, ये फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं आपको इसको बहुत सिंपल वे में समझा देती हूँ। एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ये लो एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो व्हाट आर दे सेइंग, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, एक कॉर्ड कर दी, क्योंकि अब इनके बीच में एंगल बन रहा है तो मुझे इनको इंटरसेक्टिंग कराना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे कॉर्ड बना दूंगी फिर बोलूंगी इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, एंगल तो बाहर जाके बनेगा, ठीक है। तो एक ऐसे कॉर्ड बना दीजिए जो टेंजेंट को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो व्हाट आर दे सेइंग एक्चुअली, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर सेइंग दैट द एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बन रहा है। अब इसकी सेगमेंट क्या है बच्चों, इसकी सेगमेंट ये है, तो इसको ऑल्टरनेट सेगमेंट क्या हो गया, ये। अब ये अगर इसको ऑल्टरनेट सेगमेंट हुआ है तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में कितने भी एंगल बने, सॉरी, ऑल्टरनेट सेगमेंट में आपके कितने भी एंगल बने, ये भी आपका एक ऑल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बन रहा है, ये भी आपका एक ऑल्टरनेट सेगमेंट में, ये देखिए जितने एंगल्स बनेंगे ये सारे एंगल्स इस ब्लैक वाले एंगल के इक्वल होंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये थ्योरम है। दे आर सेइंग दैट द एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट इज इक्वल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में तो होगा ही, दे विल बी इक्वल टू द ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो भी एंगल बनेगा। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में आपको बता दें बहुत सारे कितने भी एंगल्स बन सकते हैं, ये देखो सर्कल को टच करके और इस लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं दे विल ऑल कॉल टू बी द, ठीक है। ये प्रूफ करना है, चलिए तो आई थिंक इसको प्रूफ कर सकते हैं, इट्स क्वाइट इजी। एक डायमीटर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको पहले थोड़ा सा एक ओवरव्यू देती हूँ, ठीक है, बाकी मैं आपको दिखा दूंगी, आप देख सकते हैं कि लिखना कैसे। पहले इसको समझिए, आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग थ्योरम को पहले समझते नहीं है। पहले जब मोमेंट यू आर लुकिंग एट द क्वेश्चन, द मोमेंट यू आर लुकिंग एट द थ्योरम, ट्राई टू विजुअलाइज इट कि मैं क्या करूं कि क्या हो जाए। द मोमेंट यू विल बी डूइंग दैट इट विल बी वेरी इजी, ओके। सो द मोमेंट आई विल बी डूइंग दैट इट विल बी वेरी इजी, ये चीज याद रखिए। द मोमेंट आई विल बी विजुअलाइजिंग, मुझे विजुअलाइज करना आ जाएगा, मुझे सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसका थ्योरम, चलिए इसका बहुत इजी सा है, मैं आपको बहुत इजी वे में दिखा देती हूँ। बुक में थोड़ा सा एंगल्स लिखा हुआ है और आपको पता है कंचन मैम तो कभी एंगल्स लेती ही नहीं है, मैम तो 1 2 3 4 लेती है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लिया था, ये देखो हमने ये डायमीटर ले लिया, ठीक है। तो डायमीटर क्या है भाई, ये सेंटर है, तो ये ए आर एक डायमीटर हो गया। अब आपने ये डायमीटर लिया है तो ये एंगल 90, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एंगल 90 क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90। तो मैं इसको ले रही हूँ एंगल 1, इसको मैं ले रही हूँ एंगल 2 और इसको मैं ले रही हूँ एंगल 3। बस इतने से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी। ध्यान देखिए, अगर मैंने कहा ये बी एंगल इन अ सेमी सर्कल, मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, लेट मी राइट इट। ओके, लेट मी राइट इट। अगर मैं ले लू एंगल ए आर बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वाई आपको हमेशा बताया है ब्रैकेट में ऑलवेज एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल। अब अगर ये 90 के है तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल। भाई अगर 3 एंगल में से एक एंगल 90 हो गया तो इन दोनों का सम भी 90 हो जाएगा। इस बात में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये आप लगा सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ अब आप एक बात बताइए, एंगल 2 और एंगल 3 भी तो 90 के इक्वल होगा, क्यों, रीजन बताती हूँ। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, ये एक सर्कल है, चलिए मैं नीचे समझा देती हूँ, आप यहाँ पे समझ के फिर मैं इसको इरेज करूंगी तो समझिए। ये एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी,
और ये रेडियस है, ये देख सकते हैं ना आप, ये रेडियस है, ये ओ से एक रेडियस आ रहा है, लेट मी राइट इट ओ ए। तो आपको पता है कि जो रेडियस से हम टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होता है। अब इस 90 डिग्री को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे, तो ये वाला पार्ट मैंने 2 लिखा है और ये वाला पार्ट मैंने 3 लिखा है, तो भाई 2 + 3 भी तो 90 होगा। यस, तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन कंक्लूड, भाई एंगल 1 भी एंगल 90 के इक्वल है, एंगल 2 + एंगल 3 भी 90 के इक्वल, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। ओके, एंगल 0 एंगल 2 कट गया, आपके पास आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इतनी बात समझ में आई। ये सबसे इजीएस्ट मेथड है। आप ए आर बी, बी आर ए लेंगे, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता। समझ में आता है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है उसमें ना। अगर आप थोड़े से मैथ्स में, आपको थोड़ी सी मैथ्स में मतलब डिफिकल्टी होती है ना इतनी सी भी, तो फिर जब ए आर बी और ए बी आर आ जाता है ना, तो वो और कंफ्यूजिंग हो जाता है। बेटर टू राइट लाइक दिस। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये एंगल 1 है बच्चों, अगर ये एंगल 1 है, तो क्या ये एंगल 1 नहीं हो जाएगा, बताइए, होगा। तो ये एक सर्कल है, एक सर्कल पे ये एक कॉर्ड है, ठीक है, सेगमेंट, इस पे ये एंगल यहाँ बन रहा था और इस पे यही एंगल यहाँ बन रहा है, तो क्या ये एंगल 1 1 इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ से क्या कंक्लूड आ गया, इससे ये कंक्लूड आ गया कि जो एंगल, ये वाला जो एंगल है बेसिकली बी सी ए जो हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल ए आर बी will be equal to एंगल ए सी बी। रीजन लिख दीजिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट, और यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल ए सी बी, जो ए सी बी हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी ए क्यू के। आ गया। ये बन रहा था कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, देखो ये बन रहा था कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच में बन रहा था, और ये एंगल आ गया सेगमेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, बहुत सिंपल, ठीक है। बस इस तरीके से अगर आप इस थ्योरम को प्रूव करेंगे ना, तो थ्योरम प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। बट यू हैव टू आपको इसी तरीके से थ्योरम को प्रूव करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, डिफिकल्टी हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरे तरीके के लिए भी यूज कर सकते हैं, सिमिलरली हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, दूसरे वाले के लिए, ये जो अब ये वाला कॉर्ड है, अब देखिए, अब अगर मैंने ये सर्कल बनाया और मैंने इसकी बनाई एक कॉर्ड, मैं बना के दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बनाई, मैंने बोला ये वाला जो एंगल है ये इस सेगमेंट के इक्वल है। तो बच्चों एक और भी तो एंगल बन रहा है ना, एक और भी तो एंगल बन रहा है कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में, कौन सा बन रहा है, ये वाला एंगल भी तो बन रहा है। तो ये वाला किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले के इक्वल हो जाएगा। ये भी आप प्रूव कर सकते हैं, जो रेड वाला है ये इधर इक्वल हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट है, इसका सेगमेंट ये रहा तो इसका, और ये वाला आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही डिटेल्ड वे में आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से करना है। ये आर ए बी, बी ए क्यू, ए आर बी, आर ए बी, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट राइट एंगल 1 2 and 3 एंड जस्ट डू दैट, ओके, कोई गलत नहीं कर सकता। बट हाँ, अब ये नहीं कि बिना कंसिडरेशन के आपने 1 2 3 लिख दिया, प्लीज ऐसा मत करिएगा, फिर बोला मैम ने पढ़ाया था। अरे तो मैम ने कंसिडर भी तो किया था, मैम ने कहा था कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कंसिडर करके फिर 1 2 लिखिएगा, अदरवाइज बिना 1, मतलब आपने क्वेश्चन में डायग्राम में तो मेंशन नहीं किया और लिखते जा रहे हैं जी 1 + 2। अब मैडम को क्या पता कि कौन 1 है और कौन 2 है, फिर गलत हो जाएगा, फिर बोलेंगे ठीक है। चलिए एक और थ्योरम है, चलिए इसको कर लेते हैं, ठीक है। So now let's take this theorem, one more theorem. In the case when a chord and a tangent intersect externally, then the product of the length of the segment of the chord is equal to the square of the length of the tangent from the point of contact to the point of intersection. अभी ऐसे समझाऊंगी तो समझ नहीं आएगा, राइट, स्टेटमेंट्स तो वैसे भी समझ में नहीं आती है, चलो अब समझ में आ जाएगा। सो व्हाट आर दे सेइंग एक्चुअली, अ chord and a tangent अगर externally intersect कर रहे हैं, so the product, what are they saying, try to understand the product of the lengths of the segment of the chord। तो segment of the chord क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा AP और एक हो जाएगा BP। तो ये किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट।
square of the length of the tangent. So it's very simple. PA into PB, PA into PB will be equal to PT square. ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे अगर ये थ्योरम याद होगी तो। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं जल्दी से। Hence the chord AB and tangent TP intersect each other at point P outside the circle. तो हमने क्या किया, हमने TA और TB को ज्वाइन कर दिया। Now it's very simple. Now look at the triangle PAT. एक आप ट्राइंगल PAT में देख लीजिए, PAT में देख लीजिए, और छोटा वाला ट्राइंगल, छोटू सा जो ट्राइंगल बन रहा है PTB में भी देख लीजिए। अब देखिए PTB और एंगल A, PTB, ये वाला अभी थ्योरम पढ़ी कि ये वाला जो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बन रहा है ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में बन रहा है। कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। और एंगल P आ गया कॉमन। ये वही थ्योरम है जो जस्ट हमने अभी एक स्लाइड पहले करी है कि द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, अगर कॉर्ड और टेंशन के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, आ गया। दो दो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, एक P कॉमन है, दोनों में P कॉमन है, ये देखो इसमें भी P है, इसमें भी P है, देख सकते हैं आप, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। अब जैसे ही सिमिलर हुए तो लगा दीजिए प्रोपोर्शनैलिटी वाली थ्योरम कि दोनों के जो रेशियो, साइड्स के जो रेशियोज होंगे उनका प्रपोर्शन हो जाएगा इक्वल। ठीक है, अब आप प्लीज कभी कंफ्यूज मत होना कि लिखना कैसे, लिखना आपको बताया है, जो एंगल जिसके इक्वल है उसके लिख दीजिए। ये वाला एंगल इसके इक्वल था तो इस वाले एंगल की साइड ये और इस वाले एंगल की साइड ये, तो जो एंगल जिसकी इक्वल है उसके साइड आप लिख सकते हैं, आपका इजीली प्रोपोर्शनैलिटी का कंसेप्ट बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इन द फिगर PT टचेस अ सर्कल विद सेंटर O। PT जो है आप देख सकते हैं, PT एक टेंजेंट है जो सर्कल को टच करता है जिसका सेंटर O है। नाउ देयर इज अ डायमीटर कॉल्ड SOQ। अब डायमीटर दिया ना बच्चों, द मोमेंट इट हैज बीन गिवन डायमीटर, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, जब भी डायमीटर गिवन हो ना तो एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 डिग्री जरूर आप याद रखिए। ठीक है, चलिए व्हेन द प्रोड्यूस, ये सब दे रखा है आपको, आपको एक्स और वाई दे रखा है। फाइनल देख लीजिए, आपको ये रिलेशनशिप प्रूव करना है कि x प्लस 2y डिग्री, x डिग्री प्लस 2y डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, यू हैव टू प्रूव। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से हम पहले करते हुए आए हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके पास, लेट मी टेक अ लाइन, अगर आपके पास ये, बोलोगे मैम दिखाई नहीं दे रहा, चलो, अगर आपके पास ये डायमीटर है तो बच्चों अगर ये डायमीटर है तो ये क्या बन गया, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, आपका ये 90 डिग्री बन गया। अब बच्चों अगर ये 90 है तो बहुत सिंपल सी बात है कि इसका और इसका सम भी 90 हो जाएगा, तो मैं इसको ले लेती हूँ 1 एंड 2। सो मैंने इसको ले लिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल, 90 के इक्वल। इतना आप याद रखिए। ठीक है, अब देखिए ये 90 तो आ रहा है, अब एनी हाउ अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 को x और y के रिस्पेक्ट में लिख सकती हूँ तो काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं, अब ध्यान से देखिए, लेट मी इरेज दिस सो दैट आपको दिखाई दे प्रॉपर। यस, अब ध्यान से देखिए, मैंने ये एंगल 1 लिया है, राइट, ये किसके इक्वल है, ये देखो ये ऐसा ट्राइंगल बन रहा है, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा एक्स लार्ज करके दिखा देती हूँ, ये x डिग्री है, ये y डिग्री है और ये एंगल 1 है। तो कुछ दिख रहा है आपको, एंगल 1 एक्सटीरियर है, सो ऑब्वियसली जो एंगल 1 है वो x प्लस वाई के इक्वल है। क्यों, रीजन जरूर लिखना है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू x डिग्री प्लस y डिग्री, रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चाहे जब आप 6 क्लास से, 6 क्लास थोड़ी छोटी है, 7th क्लास से ऑनवर्ड्स आते हैं ना, 10th क्लास तक या हायर एजुकेशन तक, हमेशा रीजन लिखना जरूरी होता है। तो इसलिए जब भी कुछ भी अप्लाई करें कृपया करके उसका रीजन जरूर लिखें, ऑलवेज मेंशन द रीजन, अदरवाइज कोई सेंस ही नहीं है जो आपने बात लिखी है उसका। ओके, एक्स प्लस वाई। नाउ लुक एट द 2। अब y को देखिए, ये y है, ये y किसके बीच में बन रहा है, ये टेंजेंट है। ओके चलिए इसको भी बना के दिखा देते हैं, लेट मी चलिए इसको भी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, छोटा सा आपको बेटर समझ में आएगा। ये देखिए ये लाइन है, ये टेंजेंट है और ये हो गया कॉर्ड, ये। तो जो एंगल y दिया है बच्चों, ये दिया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये y दिया है, तो अगर ये y है तो ये इसके ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पे जो बन रहा है इसके इक्वल हो जाएगा, तो मीन्स
जो 2 है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, आ गया 90 और प्रूफ हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2y 90 डिग्री। ये लॉजिक 3 लाइंस में योर प्रूफ इज डन। तो क्या किया, दो तीन कंसेप्ट में किया। पहला कंसेप्ट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, दूसरा कंसेप्ट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तीसरा कंसेप्ट दैट एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द टेंजेंट इज इक्वल टू द एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। द मोमेंट बस अप्रोच, द मोमेंट आपको ये क्वेश्चन दिखा, बस यूं आना चाहिए दिमाग में कि भाई एंगल इन, और जहां पे डायमीटर दिया है, भाई मैं हमेशा बोलती हूँ डायमीटर जहां पे भी दिया है ना, आंख बंद करके वहां पे एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री तो 100% आप यूज करने वाले हैं। ओके, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे इस थ्योरम को, फंस जाएंगे। आपको फिर बहुत ऐसा नहीं कि आप बिना इसके प्रूफ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे और भी तरीके हैं इसको प्रूफ करने के, बट दिस इज द इजिएस्ट। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो इसी का एक्सप्लेनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये इतना इतना ये मैं आपको कभी नहीं बोलूंगी, दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से there is no need to take, just take angle 1, angle 2, angle 3, do the questions, write the reasons in the bracket and it will be done। ये देखो 180 180 180 किया हुआ है, मैं बोलूंगी नहीं आप 180 से करो, आप डायरेक्ट करो इसको। ठीक है, चलिए ये भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। एबीसी इज इनस्क्राइब, तो जब भी इनस्क्राइब होता है तो वो उसके अंदर है। देखो इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल तो सर्कल के अंदर है, और सर्कमस्क्राइब होता तो बाहर होता। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम फिगर गिवन नहीं होता है गाइस, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू आल्सो। इज दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, सॉरी ये जो ए बी है ये ए सी के इक्वल है, डी ए एक टेंजेंट है, यू हैव टू प्रूव दैट ये दोनों जो लाइंस आ रही है, मतलब डी ई क्या होगी, हमें इसके ये दोनों पैरेलल है, वी हैव टू प्रूव दिस। अब आपको पता है कि नहीं पता है कि अगर हमें पैरेलल लाइन प्रूव करनी है तो कुछ रीजंस हैं, या तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दो, या आप ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर दो, या आप ये प्रूफ कर दो कि एंगल्स इन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो इन तीनों में से अगर आप कोई भी एक चीज प्रूव कर देंगे ना, आपका क्वेश्चन विल बी डन। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम कोई भी एक चीज प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ओके, नाउ लेट्स डू इट। द वेरी फर्स्ट इज, ये देखो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, द मोमेंट यू विल सी अ कॉर्ड इन अ टेंजेंट, देखो इस ट्राइंगल को पार्ट्स में देखो, ए बी ट्राइंगल की साइड तो है, लेकिन ए बी एक कॉर्ड भी तो है। तो इट्स बहुत सिंपल सा एक लॉजिक यू कैन मेक। ओके, सो इट मीन्स दैट कि अगर आप इसको यहाँ पे, अगर आप ये वाला एंगल देखो तो ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट इसके इक्वल है। मैं अब लिख देती हूँ एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। So can you see that angle 1 is equal to angle 2? What is the reason? The reason is angle 1 is between the chord and the tangent and angle 2 is in the alternate segment. ठीक है, reason you can write. Now angle 2 will be equal to angle 3. Reason, भाई isosceles triangle है, तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल। अब एंगल 2 एंगल 3 के आके इक्वल आ गया। अब एंगल 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, तो इससे क्या रिजल्ट मैं निकाल सकती हूँ, व्हाट कैन आई इंटरप्रेट फ्रॉम हियर, दैट एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड इफ यू विल लुकिंग एट कि ये कौन से एंगल बना रहे हैं एंगल 1 और एंगल 2, तो यहाँ से और यहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने आपको हमेशा आई थिंक आपको नहीं लोअर क्लासेस में बताया होगा कि जब भी ऑल्टरनेट एंगल देखना है तो जेड देखो, अगर z के ये दोनों एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो मतलब ये जो z की लाइंस है दे आर पैरेलल, तो यहाँ पे हो ही रहा है 1 और 2 पैरेलल है। ठीक है, सो सिंपल सो इजी। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द वे टू राइट, बट वेरी सिंपल नो, 1 2 3 ले लीजिए, विल बी दैट। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, वी हैव लर्न अबाउट द थ्योरम्स एंड प्रूफ्स आल्सो, और कुछ क्वेश्चंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये एक और क्वेश्चन है, दिस इज फॉर यू, यू कैन डू दिस, वेरी सिंपल, जस्ट एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है, जस्ट डू दिस आल्सो। ठीक है, मैं सॉल्यूशन नहीं दिखा रही हूँ आपको, ये खुद करना है। ओके, सो इट्स टाइम टू वाइंड अप द क्लास, होप यू हैव सब्सक्राइब्ड इट द चैनल, होप यू हैव लाइक्ड इट आल्सो, एंड कमेंट तो मैं हमेशा कहती हूँ, सजेशन है, क्वेरीज एंड जस्ट डू कमेंट गाइज। ओके, शेयर भी कर सकते हैं। ओके, सो टिल टू द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। अभी इसका एक और सेशन बचता है जो ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, in which we will be doing some important question which will be again important for the examination point of view। आप सबको पता है स्विफ्टलैंड में हम क्या करते हैं, पहले हम चैप्टर लेते हैं, उसके 2-3 सेशंस लेते हैं, लास्ट सेशंस में हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एमसीक्यूज एंड विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस, जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, राइट।
So bye bye, take care.